یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. وزیر اعظم نریندر مودی کا 5 ملکی دورہ 2 جولائی سے شروع. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بالتل بنیادی کیمپ کا دورہ کر کے سلامتی اور دیگر انتظامات کا لیا جائزہ. مختلف محکموں کے مابین باہمی تال میل کی ضرورت پر دیا زور. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کشمیری کاریگروں کو عالمی سطح کی مارکیٹ سہولیات دستیاب کرانے کا دہرایا حکومت کا عزم. اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ویٹرنری کے شعبے میں ٹیکنالوجی کو مکمل طور سے بروئے کار لانے کی ضرورت پر دیا زور. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی 2 جولائی کو گانا، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو، ارجنٹینا، برازیل اور نامیبیا کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. نئی دلی میں آج ایک خصوصی پریس بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ میں سیکرٹری اکنامک ریلیشنز دامو روی نے کہا کہ دورے کے پہلے مرحلے کے دوران نریندر مودی 2 جولائی سے 3 جولائی تک گانا جائیں گے، جہاں وہ گانا کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مختلف شعبوں میں اشتراک کو آگے بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے شروع ہونے میں اب جبکہ صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اس سلسلے میں تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں اور یاترا کے پرامن اور احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج بالتل بنیادی کیمپ کا دورہ کر کے وہاں سلامتی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا. یاترا انتظامات میں شامل تمام محکموں کے افسروں کے ساتھ بات چیت کے بعد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، پولیس اور حفاظتی عملہ باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہا ہے. بعد میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ادھیکاری موجود تھے، سینئر آفیسرز تھے، سرکشا ایجنسی کے بھی سینئر آفیسرز تھے. بیٹھک کے بعد آج میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلی 4 یاتراؤں کو میں نے خود دیکھا ہے. انتظامات کافی بہتر کیا ہے. پرشاسن اور شرائن بورڈ نے مل کر کے، سیکورٹی فورسز نے بھی آپس میں ان کا کوآرڈینیشن بہت بہتر ہے. سرکشا کے بہت ہی چاک چوبند انتظام کیے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یاترا اس بار پہلے کی تلنا میں اور سفلتا پوروک لوگ کر سکیں گے اور جو بھی دیش بھر سے سالو آئیں گے وہ ایک بہتر انبھو لے کر کے یہاں سے واپس جائیں گے. دورے کے دوران ایل جی منوج سنہا نے بالتل میں یاتری نواس کمپلیکس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے وہاں دستیاب طبی سہولیات کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی. شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے ممبر کے این رائے، ایل جی کے پرنسپل سیکرٹری اور شرائن بورڈ کے سی ای او ڈاکٹر مندیپ کمار بنڈاری، ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری، آئی جی پی کشمیر وی کے بردی اور کئی دیگر اعلیٰ افسران بھی ایل جی کے ہمراہ تھے. دریا اثنا ایل جی نے وہاں شری امرناتھ جی یاترا کے دوران زیرو ویسٹ کے نظریے کو ممکن بنانے کے لیے دیہی ترقیات محکمے کی جامع آئی ای سی مہم اور متعدد اختراعی اقدامات کی شروعات کی. ڈائریکٹر جنرل رورل سینیٹیشن انو ملہوترا نے ایل جی کو جانکاری دی کہ محکمے نے یاترا کے دوران راستوں پر 5613 بیت الخلاء قائم کیے ہیں اور 7361 صفائی کرمچاریوں کو بھی کام پر لگایا گیا ہے. اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پانتھا چوک سری نگر میں شری امرناتھ شرائن بورڈ یاتری نواس کا افتتاح کیا. اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ یہ یاتری نواس بابا برفانی کے شردھالوؤں کو بہتر سے بہتر سہولیات دستیاب کرانے کے انتظامیہ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے. ادھر مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران بھی بالتل اور پہلگام کا دورہ کر کے یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں. خوراک و امور صارفین محکمے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اویس احمد نے بھی پہلگام کا دورہ کر کے وہاں یاتریوں کے لیے غذائی اجناس کی دستیابی کا جائزہ لیا. بعد میں ہمارے نمائندے تصدق رشید کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جو ہمارے اسٹیشنز ہوتے ہیں جو بھی پروویژننگ کرنی رہتی ہے وہ پوری ہے اور جو پچھلے سال ایلوکیشن تھی اس سے زیادہ ہی اس بار رکھی ہوئی ہے اور ہمارا جو سٹاکنگ ہے وہ کی جا چکی ہے ساری چیزوں کی، چاہے وہ فوڈ گرینز ہو یا جو بھی اسینشیل سپلائز رہتی ہیں. اور ہماری مین پاور بھی ڈپلائڈ ہے تو جگہ جگہ جو ہمارے اسٹیشنز ہیں وہاں پہ جو ہماری مین پاور ہے ان کو انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ ایز ایویڈنس بھی کام کریں، کسی طرح کی کوئی سویدھا کی ضرورت ہو تو وہ بھی دے سکے. تو پوری طرح سے تیار ہے. ادھر ملک کی مختلف ریاستوں سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتری جموں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. کئی یاتریوں نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا.
व्यवस्था की बात करें तो आर्मी को मेरा सलूट है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो है काउंटर है, टोकन काउंटर थोड़े ज्यादा होने चाहिए, जिस हिसाब से लोग हैं कोई डर का माहौल नहीं है। जय बाबा वरफानी। हम लोग खंडवा से आए हुए हैं, 51 लोग आए हुए हैं। जम्मू आके बहुत अच्छा लगा। पहले भी हम 3 बार विगत यात्रा कर चुके हैं, बहुत अच्छा लगा। पुलिस भी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। हम तो बाबा के दर पे जाते रहेंगे। मेरा नाम प्रकाश भागवत, हम महाराष्ट्र एल्लोरा से आए हैं। कुल हमारे साथी 40 आदमी हैं। हम पहली बार आए हैं, बढ़िया लगा है, व्यवस्था अच्छी है, कोई डर नहीं है। बाबा तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने आईजीपी जम्मू भीमसेन तूती के हमरा आज रामबन का दौरा करके वहां यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज SKICC श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा, हम तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं यात्रा कामयाब हो, अच्छी तादाद में यात्री आएं और दर्शन करें और सही सलामत घर वापस जाएं। उसके लिए हमारे तरफ से हुकूमत को जो भी इक़दाम उठाने थे अरेंजमेंट्स के हिसाब से और तैयारी करने के लिए, वो हमने की हैं। तो अब हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। 2 तारीख को जम्मू से फ्लैग ऑफ होगा, यहाँ पे उनका इस्तकबाल होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत कश्मीरी कारीगरों और आलमी सतह के मार्केट के दरमियान तारीखी रिश्तों को बहाल करने की वादाबंद है। SKICC श्रीनगर में आज बायर सेलर मीट 2025 से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात से मकामी कारीगरों को बाइख्तियार बनाकर इक़्तिसादी मंजरनामे को तक़वियत बख्शने, नीज़ यहाँ के कारीगरों को अपना माल बेचने और अपने फ़न को नई जहत देने में मदद मिलेगी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए वज़ीर आला ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया, इस बायर सेलर मीट से कम नए सिरे से रिश्ते बनाने में थोड़ी सी हमें मदद मिलेगी। ये एक बायर सेलर मीट का जो सिलसिला होगा उसकी शुरुआत हमने 6 बायर सेलर मीट और 6 रिवर्स बायर सेलर मीट जो हैं वो ऑर्गेनाइज करने। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्केटिंग और एक्सपोजर में हमारे जो क्राफ्ट्स पर्सन्स हैं उनको इन चीज का बड़ा फायदा होगा। नाबार्ड के चेयरमैन शाहजी केवी ने आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में देही बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने, किसानों को कर्जे फराहम करने, नीज़ ज़री शोबे से जुड़े कारखानेदारों को तक़वियत बख्शने से मुतल्लिक अमूर पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो प्रोग्राम के 123वें शुमारे के दौरान कल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 6000 बूथ कायम किए थे। इस सिलसिले में सुचेतगढ़ सरहद पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा और MLA प्रोफेसर गौरव राम भगत की सदारत में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहां मन की बात प्रोग्राम सुनने के बाद बीजेपी के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत पेश किया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत ने अपने डिजिटल इकदामात की बदौलत हुक्मरानी के अमल को वसअत देकर मुल्क के शहरियों को बाइख्तियार बनाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी। पुडुचेरी में आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की साउदर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस के इफ्ताही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने DBT, डिजिलॉकर, उमंग ऐप, जनधन और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तस्वुरात वजूद में लाकर लोगों की समाजी और इक़्तिसादी हालत में मस्बत बदलाव लाया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान वादी भर में अमलाए जा रहे सेहत प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों बिलखसूस दूर अफ्तादा और बर्फ वाले इलाकों में इन प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि लोगों को मयारी तिब्बी सहूलियात दस्तियाब हो सकें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि टेक्नोलॉजी दीगर शोबों की तरह वेटनरी, अद्वियात और पशुपालन की निगहदाश्त के शोबे में इनकलाबी नौयत की तब्दीली लाने में मददगार साबित हो सकती है। बरेली उत्तर प्रदेश में आज इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के 11वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी मुल्क भर में मौजूद वेटनरी अस्पतालों को काफ़ी हद तक बाइख्तियार बना सकती है।
पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इन मेलों के तहत गांव-गांव में कैंप, लगातार पशुओं की चिकित्सा होने पर पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रेनडेयर फर्स्ट महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम दर्ज अनेक पेटेंट्स, डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में है। आज मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस महीने की चौथी तारीख है। इस मुक़द्दस महीने के दौरान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल बैत के ने मैदान करबला में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। फजीलतों से पुर इस महीने के तनाजुर में शहदाए करबला को खराज अकीदत अदा करने के लिए आज़ादारी के जुलूसों, मरसिया ख़्वानी और नवा ख़्वानी की मजालिस का इनेकाद जारी है। खून में डूबी हुई वो आयते तत्हीर थी, करबला में ज़ेर खंजर गर्दने शबीर थी। हुसैन 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 हुसैन। दरियाशना मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करदा एक खुसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र होगा। प्रोग्राम के मेहमान हैं अंजुमन शरी शिया शरीयत आबाद बड़गाम के सदर आगा सैयद मोहम्मद हादी अल मौसवी असफ़ी। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबरा तारिक राथर। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। जो लोग नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं, क्योंकि इस प्रकार का हर प्रयास ड्रग फ्री इंडिया में एक बहुत बड़ा योगदान है। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन इन फाइटिंग द मेनेस ऑफ ड्रग्स इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक तालिबा तमन्ना एजाज ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नशासाजी हमारे समाज में बढ़ती हुई नासाज टूट बनकर रह गया है। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे बढ़ने ना दें और कोशिश करें हम हर हाल में अपने बच्चों, भाई बहन और समाज के लोग जो इसमें मुब्तला हैं उनकी तीमारदारी करें। यकीनन गलतियां इंसान से होती हैं, मगर हमें चाहिए कि हम उनके साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा रहें। हमें चाहिए कि हम यकजा इस नशे के खिलाफ खड़ा हो जाएं और हमारे बच्चे जो 16-17 साल के हैं उन्हें एक बार और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद दें और मिलकर इस नशे का खात्मा करें। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज पार्टी सदर सत शर्मा की सदारत में जम्मू में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ सतहों पर पार्टी के कामकाज का जायजा लिया गया। सत शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत ने समाज के हर एक तबके के लिए स्कीमें शुरू की हैं। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने में अपना रोल अदा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज श्रीनगर में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कारकुनों के साथ बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत लोगों को राहत पहुंचाने की तरफ तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा बहाल करने के लिए भी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। पीडीपी लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने आज श्रीनगर में मीडिया के साथ बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मौजूदा हुकूमत बकौल उनके लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हुई है। ठीक है, आप टूरिज्म को प्रमोट करें, जरूरी है, लेकिन आपकी हुकूमत की नजर हर चीज पर होनी चाहिए। खासकर जो पिछले 7-5-6 सालों में जो सेक्टर्स इग्नोर हुए, उसी के साथ साथ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को देखिए, सबसे वर्स्ट हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा ड्राई स्पेल है, पानी नहीं है अवेलेबल, इरिगेशन सप्लाईज मुतासिर हुई है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज बारामूला ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहां अवाम को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हाथ में लिए गए काम का भी मुआयना किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी हल्का तूथे चक तहसील हीरानगर कठवा के
पटवारी लियाकत अली को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी आज भूटान के 4 रोजा दौरे पर रवाना हुए, जहां वो भूटान के किंग जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक और रॉयल भूटान आर्मी के चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स के साथ अलग अलग मीटिंगें करेंगे। जम्मू कश्मीर में कल 102 मराकज़ पर लगभग 6,000 8वीं जमात के तलबा ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम इम्तिहान में हिस्सा लिया। ये इम्तिहान पास करने पर इक्तिसादी तौर कमज़ोर तलबा को 4 साल तक सालाना 12,000 रुपये की माली मुआवनत हासिल होती है। इस साल मरकज़ी सरकार ने इस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर को 1068 सीटों का कोटा फराहम किया है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक फार्मा कंपनी में आज हुए धमाके में 12 वर्कर जाँ बहक और 26 दीगर जख्मी हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुए कीमती जानों के ज़ियां पर दुख का इजहार करते हुए मारे गए अफराद के लवाहकीन के हक में 2-2 लाख रुपए जबकि जख्मियों के हक में फीकस 50,000 रुपए वागुजार करने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमेरिका के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। ये दौरा कल से शुरू होने वाले क्वाड वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दावत पर खू रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि क्वाड ग्रुप का मकसद एक आज़ाद और खुले भारत बहरकायल ख़ित्ते के लिए मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने की नई तजावीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करना है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये इजलास पहलगाम हमले के बाद क्वाड वज़रा की पहली मीटिंग होगी। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:23 पर और गरूब आफ्ताब शाम 7:47 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।